Then any doubts from previous class? No doubts? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे. देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा. हमने डिस्कस किया कि बाय यूजिंग NaCl हाउ कैन वी प्रिपेयर द फ्लोइंग कंपाउंड्स. सो हमने कहा फर्स्ट कंपाउंड दैट वी नीड टू प्रिपेयर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट वी प्रिपेयर्ड यस्टरडे बाय chlor-alkali process. Now what was the chlor-alkali process? The chlor-alkali process was we were taking sodium chloride and we were adding water to it. Once we add water to sodium chloride, the aqueous solution that forms, but yes, we have given that name as brine solution. Now for the brine solution we'll passing electricity. Once we pass the electricity, we'll get sodium hydroxide along with the chlorine gas and the hydrogen gas. As you can see in this reaction, a chlorine gas and an alkali are forming. Chlorine gas and alkali are forming. That's why this process is known as chlor-alkali process. क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? chlor-alkali process कहा जाता है. ठीक है. After that, we discuss the formation of bleaching powder. When we talk about bleaching powder, guys, the name of bleaching powder, the chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride and its formula is CaOCl2. Now when we talk about its preparation, the first step is this one, again the chlor-alkali process, and from the chlor-alkali process the chlorine we obtain. We pass this chlorine from dry slag lime. The dry slag lime has a formula COH twice, and we pass chlorine gas from it, and what do we get? CaOCl2, calcium oxychloride, which is basically bleaching powder. So this was the step 2 of bleaching powder preparation, and there were certain uses of bleaching powder as well, that it is used as a disinfectant, it is used in textile industry as well. तो वो uses भी you should remember कि क्या क्या uses हैं. ये दो हमने पढ़ लिए थे. The third one today we need to begin. The third that we need to form using sodium chloride, the third thing is baking soda, and the last one is washing soda. Guys, first of all when I talk about baking soda, the formula of baking soda is NaHCO3. क्या हमने बेकिंग सोडा के बारे में पहले कुछ डिस्कस किया? अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर हमने ये डिस्कस किया था. याद करो. बेस होता है कि सर आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड यू हैव 3 substances, vinegar, lemon juice and baking soda. So what would you prefer? So you had answered sir baking soda because baking soda is basic in nature. Now I want to know why it is basic in nature. बिल्कुल, it is a metal hydrogen carbonate, and a metal hydrogen carbonate or a metal carbonate are always basic in nature. So that's why it is basic in nature. The last thing that we need to form is washing soda. तो करते हैं. The formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2. Dot का मतलब क्या होता है? We'll see. So right now the topic that we need to begin is the preparation of baking soda. Using sodium chloride. Let's see how we can do this. Preparation of hello.
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बेकिंग सोडा इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है यानी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, विद अ स्लाइटली सॉल्टी टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट जैसा टेस्ट होता है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इज जनरली नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, की बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आप ये रिएक्शन पे पहले फोकस करेंगे। रिएक्शन क्या कह रही है, ये रिएक्शन कह रही है यू टुक सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड लो, अब वाटर लो, उसमें क्या डालो, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें क्या डालो, NH3। NH3 किसका फॉर्मूला, किसको पता है, हाँ इथेन का नहीं, अमोनिया, किसका फॉर्मूला है, अमोनिया। तो आपने सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, दैट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। आपने ब्राइन सॉल्यूशन में एडिशनली क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसने बनाया NH4Cl और साथ बनाया NaHCO3, और NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा। मैं ये जानना चाहता हूँ ब्लीचिंग पाउडर के लिए ना आपने 2 रिएक्शन लिखी थी, किसी को याद है 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? बिल्कुल, कि जो दूसरी रिएक्शन हम पढ़ रहे थे ना उसमें NaCl का यूज नहीं हो रहा था, बट हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमने उसका स्टेप 1 बनाया था। क्या इसके लिए कोई दूसरी रिएक्शन की जरूरत है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसमें तो सोडियम क्लोराइड पहले से ही आ रहा है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपने वाटर ऐड किया, उसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, उसमें से आपने अमोनिया पास किया। Once you did that, you get NH4Cl, which is ammonium chloride, and sodium hydrogen carbonate, which is baking soda. बज रहा है? क्या हो रहा है? बेकिंग सोडा, बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? यही एक रिएक्शन लिखनी है आपको, एक ही स्टेप है, कोई दूसरा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है बेकिंग सोडा इज सिंथेसाइज्ड थ्रू सोलवे प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सोलवे प्रोसेस। तो बेकिंग सोडा इज सिंथेसाइज्ड थ्रू सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया and carbon dioxide, ammonia and carbon dioxide in water. The carbon dioxide involved in this process involved is produced। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डीप बता रहे हैं, इतना डीप आप याद नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपके थोड़ी सी नॉलेज के लिए है कि कैसे ये सामान आपके पास, ये जो सब्सटेंसेस है कैसे आप तक पहुंच रहे हैं। तो कह रहा है द कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, द कैल्शियम डाइऑक्साइड, जो कैल्शियम डाइऑक्साइड बनी है वो कैसे बनी है, थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट। किसका यूज किया था आपने, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब आप याद करो, अब थोड़ी सी पुरानी नॉलेज काम आएगी, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो, हाँ वेरी गुड, पहले इस बात पे आ जाते हैं, बाकी सब तो छोड़ दो, पहले यही सुन लो। इन्होंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब याद करो चैप्टर 1 में ना मैंने आपको एक बहुत ही वाहियात एग्जांपल देके समझाया था। मैंने कहा था कि आप चावल लो और आप दाल लो, आप उनको मिक्स कर दो, क्या उससे कभी भी आलू गोभी बन सकते हैं? नहीं। तो वहां से रहते सर कैसी बात कर रहे हो? अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, उसे हीट कर रहे हो, क्या हीट करके कभी भी हाइड्रोजन आ सकता है? नहीं, सोच ही गलत है, इतनी दूर तक तो सोच जानी भी नहीं चाहिए। बोलो क्या बनेगा? बिल्कुल पाप है बोलना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलना ही पाप है, CaO + CO2। तो अब ध्यान से पढ़ना और रिलेट करने की कोशिश करना, क्या बात जच रही है नहीं जच रही। क्या कह रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इज लेफ्ट। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड तो आई नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे बच रहा है, एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इज लेफ्ट। जो कैल्शियम ऑक्साइड बच गया उसका क्या करें, इज यूज्ड इन रिकवरिंग अमोनिया थ्रू अमोनियम क्लोराइड। फिर हम इसको किससे रिएक्ट करते हैं, NH4Cl से, और हमें वापस से क्या मिल जाता है, अमोनिया। क्या मिल जाता है, अमोनिया। नहीं समझे बात? भाई मैं एक कंपनी, मेरी कंपनी है और मेरे को बेकिंग सोडा बनाना है, मैं सबसे पहले क्या लेकर आऊंगा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट करूंगा, हीट करके क्या बना लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैं सोडियम क्लोराइड लूंगा, वाटर लूंगा, अमोनिया लूंगा, और उसमें क्या ऐड करूंगा, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूंगा। ऐड करा,
NH4Cl बना, बेकिंग सोडा बना। बेकिंग सोडा मेरे काम का है, पैकेट में पैक कर कर बेच दिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन क्या और बेकिंग सोडा नहीं बनाना? बनाना है। अगर और बेकिंग सोडा बनाना है तो और अमोनिया की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अब मैं क्या वो अमोनिया मार्केट से खरीद के लाऊं? नहीं। मैंने क्या करा, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट बना, इसी वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड, जो दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट था, जो दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट था, और उससे क्या बन गया? अमोनिया। क्या बन गया? अमोनिया। अब मैं उसी अमोनिया को वापस से यहाँ डालूंगा और ये रिएक्शन दोबारा से होने लगेगी। तो ये क्या कह रहा है, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है बेकिंग सोडा इज सिंथेसाइज्ड टू सोल्वे प्रोसेस। बेकिंग सोडा कौन से प्रोसेस से बना? सोल्वे प्रोसेस से। सोल्वे प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन। सोल्वे प्रोसेस में क्या होता है? रिएक्शन होता है किसका? सोडियम क्लोराइड का अमोनिया, सोडियम क्लोराइड का अमोनिया का, और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके साथ होता है? वाटर के साथ होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन दिस, इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना? कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या वेस्ट बच गया? कैल्शियम ऑक्साइड। आगे पढ़ो, यहाँ क्या वेस्ट बचा था? NH4Cl। क्या कह रहा है? द कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट, जो कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, इज यूज्ड इन रिकवरिंग। उसका यूज किया जाता है रिकवर करने में। क्या रिकवर करने में? अमोनिया को रिकवर करने में। अमोनिया को रिकवर करने में कहाँ से? सोडियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है? वापस हमें क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। कह रहा है फाइनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस, और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो चुका है, और इसी की हमें जरूरत थी। आराम से देखना चाहिए। नहीं, NH4Cl होता है। NH3 तो एक कंपाउंड ही है ना। NH3 तो स्टेबल है। पहले वो एक H लेकर आता है अपने साथ पॉजिटिव, तो वो क्या बनता है? NH4 पॉजिटिव, और फिर वो जाकर NH4 पॉजिटिव, फिर वो जाके Cl नेगेटिव से रिएक्ट करता है और बनाता है NH4Cl। वो CH4 होता है, मीथेन। आराम से देख लो। मैं कह रहा हूं ये जो बातें है ना यहाँ के बाद वाली, ये उतनी ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक की उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको सम अप करूं, तो यू जस्ट नीड टू लर्न दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन याद कर लो, बहुत है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ चले गए। आपकी बचे हुए प्रोसेस से क्या क्या काम हो रहा है, ये अभी हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। किसी को डाउट है? कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या भाई? कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो सिर्फ इतना याद रख लो। तुम्हारी तो शक्लें बता रही है, तोड़ते उड़ गए तुम्हारे, इतना तो कुछ मुश्किल था भी नहीं उसमें। बेकिंग सोडा में आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि आप क्या ले रहे हो। सबसे पहले तो देखो NaCl तो आपको लेना है, आप याद रखो ब्राइन लेना है। तो NaCl के अंदर वाटर ऐड करना है, साथ में क्या ऐड करना है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या ऐड करना है? अमोनिया। देखो मैंने भी अभी भी पढ़ी, मुझे याद हो गई रिएक्शन कि भाई मुझे पता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का यूज करूंगा, वो तो हो गया। साथ में मैंने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और ये क्या बनाता है? NH4Cl, और साथ में क्या बना रहा था? NaHCO। बस इतना याद रखना। ऊपर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है? ये अमोनियम क्लोराइड का क्या हुआ? वी नॉट नीड टू रिमेम्बर। ठीक। अब अगली बात बताओ मुझे एक अगली बात बताओ, बेकिंग सोडा का कहाँ यूज करते हैं? वेरी गुड। किसी ने कहा केक। चलो केक में नहीं करते, भटूरे में करते। और भटूरे में करते तो पकोड़ों में भी करते ही हैं। और बताओ। चलो बहुत है तुम्हारे लिए, तुम इतना ही बता सकते थे। खाने से बाहर निकलोगे तो कुछ समझ में आएगा। अच्छा देखो, पहले मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमारे घर में दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। ये तुम्हें लगता है एक ही चीज होती है? ऑनेस्टली बताओ, किसको पता था दो अलग अलग चीजें? ठीक, ओके, वेरी गुड। पहले तो ये सुनो कि ये भटूरों में पकोड़ों में क्यों यूज होता है, फिर ये बताऊंगा कि केक में यूज क्यों नहीं होता। क्या हो गया? जैसे
देखो जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने क्या करा, आपने पकोड़ों के अंदर, भटूरों के अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया। उसके बाद आप उसे क्या करते हो, हीट करते हो। When baking soda is heated, it forms Na2CO3, sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. Sodium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप प्रैक्टिकली सोचो, भटूरे के अंदर ये है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है तो गैस हमेशा किधर की तरफ मूव करना चाहती है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किधर जाना चाहती है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या करेगी, जो अपने साथ थोड़ा सा आसपास का मटेरियल है उसको भी अपने साथ क्या करेगी, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। इस वजह से वो थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी दिखे। भटूरे में छोटे छोटे छेद होते हैं बीच में जब खाओ, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो गैस प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी एंड इट वांट्स टू गो अप। व्हेन इट गोज अप इट टेक्स द मटेरियल विद इटसेल्फ, तो थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी होने लगता है। बट अगर एट द सेम टाइम, सेम पकोड़ों के अंदर भी होता है थोड़े फ्लफी फ्लफी, मतलब बेकिंग सोडा डालो तो, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे केक में नहीं यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि इट इज बेसिक इन नेचर। बेस मतलब बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो अगर टेस्ट में कड़वे होते हैं और अगर मैं इसे बेस के अंदर यूज करूंगा तो मेरा केक भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। क्या मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं। तो जो डाल देते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा फ्लफी तो बनाएगा उसे, लेकिन थोड़ा सा कड़वापन भी उसकी वजह से आने लगेगा। तो क्या करें, तो मैंने कहा चलो ये तो यूज करना है, ये तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका जो बेसिक नेचर है ना वो खत्म हो जाए। बेसिक नेचर खत्म करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। एसिड मतलब बेसिकली क्या ऐड करना पड़ेगा, H प्लस आयन। क्या ऐड करना पड़ेगा, H प्लस आयन। हम जनरली कौन सा एसिड यूज करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो याद रखना, क्या याद रखना, ये जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड is known as baking powder, is known as baking powder। याद रखेंगे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर न्यूट्रल होता है, तो आप इसको केक में डालते हैं, आप इसको केक में डालते हैं और केक में डालकर आप इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये फिर से वही बनाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और अगेन ये जो CO2 है, ये जो CO2 है ये इसको कैसा बनाएगा, फिर से फ्लफी बनाएगा। H प्लस ने क्या करा, उस जो बेसिक इम्पैक्ट था उसे क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो टेस्ट है, टेस्ट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। ये सॉल्ट है, बेस नहीं है, बेसिक सॉल्ट। लेकिन उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डाल दिया तो न्यूट्रल पीएच वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगा। याद है हमने पढ़ा था वीक सॉल्ट, बेसिक मतलब बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट वैसे। तो प्रिपरेशन में तो यही है। प्रिपरेशन के बाद जो यूजेस हैं, यूजेस के लिए हमने ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा। बेकिंग पाउडर जरूर बताना चाहिए। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड। पढ़ लें इसे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये यहाँ पे टार्टारिक एसिड शायद मेंशन नहीं होगा तो हम ऐड कर लेंगे। कह रहा है इट इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड एंड केक्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज हीटेड। तो आपने ये डाला है। और ये कौन सा एसिड है, टार्टारिक एसिड। लिख लेंगे कि इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या होता है, बेकिंग पाउडर। एक नोट लिखाऊंगा, ये नोट लिखा हुआ है ना, इसका सेकंड पॉइंट बना लो। लिखो बेकिंग पाउडर is a mixture of baking soda and tartaric acid।
इस रिएक्शन के ऊपर हीट भी आनी चाहिए। तो जब आप बेकिंग पाउडर के बेकिंग सोडा के अंदर टार्टारिक एसिड डाल दोगे, इट विल मेक इट न्यूट्रल। वंस इट बिकम्स न्यूट्रल, नाउ यू कैन ऐड इट टू द केक्स सो दैट इट्स स्टेट्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। इसका सेकंड यूज केस क्या है? इसका सेकंड यूज केस है, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। 8th क्लास में ना अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाए जाते हैं, उनमें से एक होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। आई प्रीटी वेल अंडरस्टैंड कि आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। इट इज़ नो यूज फॉर अस, आपको सिर्फ यहाँ पर ये लिखना है, इट इज़ यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है वैसे हमारे काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए जो पढ़ रहे हो कि है तो होता क्या है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सटिंग्विशर हम देखते हैं ये यूज़ कैसे, ये मतलब वर्क कैसे करते हैं? कहीं पे भी आग लगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डोंट लाइक कि वो एक रेड कलर का वहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर है, नहीं। डिपेंडिंग अपॉन कि आग कहाँ पर लगी है। कभी कभी जो फायर है इट कुड बी इन द इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सेस, ठीक है, तो एक अलग तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। कहीं और लगी है तो एक अलग तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आपके स्कूल में समय टाइम टाइम पर होती होगी, वो समझाते होंगे कि कैसे कैसे होता है, सेमिनार्स वगैरह लगते होंगे, फिर वो बताते कि ऐसे लाइन होती है तो ये इस जगह पर यूज़ होता है। काफ़ी सारे होते, नहीं सिखाते? सच बताओ, नहीं आज तक नहीं सिखाया? नहीं है? कराते ना? ठीक है, तो जिनके स्कूल में नहीं कराते देखो कराना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कब आएगी बता के थोड़ी ना आएगी, तो पता होना चाहिए कब कैसे करते नहीं करते। अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मानो जैसे आप इस रूम के बाहर हो, इस रूम में आग लग गई, ये रूम बाहर से दिखता नहीं है, आर पार नहीं दिखाई देता, तो क्या करोगे? भागोगे, और तुम्हें लगे अंदर कोई रह गया तो उसकी गलती तो छोड़ के भाग जाओगे? देखो पहला डिसीजन तो बिल्कुल सही है, हाँ आपको मदद लेने जाना है, आप इतने बड़े नहीं हो कि खुद आकर मदद करोगे। अब अंदर फायर लगी है तो किस लेवल की लगी है ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गेट खोलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है गेट खोलना चाहिए? पहली बात तो नहीं, और अगर खोलना है तो बिल्कुल थोड़ा सा खोलो, देख के बंद कर दो जल्दी से। रीजन क्यों? मानो कोई एग्जैक्टली किसी ने क्या करा, किसी ने समझदारी करी कि भाई मैं तो गेट खोल लेता हूँ। ऐसा भी मत करना बाहर से कुंडी लगा के भाग जाओ, किसी को अंदर से निकलना तो फिर कुंडी लगा दी कि सर ने मना करा था गेट नहीं खोलना, मतलब तुम्हें नहीं खोलना है। क्योंकि क्या होता है जनरली अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो बर्न हो रही है। अब एक बार ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आग है वो कम होने लगेगी। बट आपने क्या करा, आपने जैसे गेट खोला बाहर से ऑक्सीजन आएगी तो वो आग और बढ़ेगी। आप गेट खोल के चले गए तो उसको परमानेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, यानी जब तक आग का मन करेगा तब तक जलेगी, तो वो बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो थोड़ी देर बाद आग बुझने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइम आता है जब आपको मॉक ड्रिल सिखाते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो आप टेबल के नीचे छुप जाओ। किसी ने सिखाया टेबल के नीचे छुप जाओ? कभी नहीं छुपना चाहिए टेबल के नीचे। अर्थक्वेक आए तो सबसे पहले बाहर भागना चाहिए एट एनी कॉस्ट, जहाँ पर भी वो बाहर भागना चाहिए। टेबल के नीचे छुप गए, दब गए तो गिरने पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर भागना है सबसे पहले। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखो जरा। मान लो द सिलेंडर लुक लाइक दिस, उसके ऊपर लीवर वगैरह लगा होता है जिससे उसको ओपन करना होता है। सोडा अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है वो सिखा रहा हूँ मैं, तो सुन लेना। यहाँ पर उसमें एक कांच की बॉटल लगी होती है, जिस कांच की बॉटल के अंदर प्रेजेंट होता है एसिड, ठीक है, और नीचे प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा। अब नाउ दे आर सेपरेटली, आप यहाँ से जो लिवर प्रेजेंट है, वंस यू पुल द लिवर, ये ग्लास की बॉटल ब्रेक डाउन होती है। ये ग्लास की बॉटल ब्रेक डाउन होगी तो जाके किस पे गिरेगी? बेकिंग सोडा पे। मानो सल्फ्यूरिक एसिड था तो H2SO4 था, और वो ब्रेक होकर जाकर किस पे गिरा? NaHCO3, एक एसिड और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट। तो Na2SO4
प्रोड्यूस करता है वाटर H2O, साथ में प्रोड्यूस क्या करता है CO2। हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वंस यू पुल द लीवर, ये ब्रेक हुआ, एसिड जो है वो बेकिंग सोडा में जाके गिरा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। जो उसमें से व्हाइट कलर का आपको निकलता दिखाई दे रहा है वो असल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल कवर द फायर एज अ ब्लैंकेट। वंस इट कवर इट एज अ ब्लैंकेट, तो क्या और ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा, नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। दिस इज हाउ द सोडा फायर एक्सटिंग्विशर वर्क। आपको नाम से पता होना चाहिए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कि इसमें किसका यूज हो रहा है, बेकिंग सोडा का यूज हो रहा है। और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बेकिंग सोडा का यूज होता है। ये 8th क्लास में पढ़ाई जाएगी। हाँ जी, क्या यूज नहीं करेंगे तो खराब हो गया। लीवर हटाने का मतलब बेसिकली आप निकालने की कोशिश करो कार्बन डाइऑक्साइड। वो कांच की बोतल टूट गई तो वो अंदर रहेगा, थोड़े समय बाद सब खराब हो जाएगा। इन है बॉटल नहीं टूटी तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो टूटनी पड़ेगी। नहीं आए, बॉटल नहीं टूट, ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, वो प्रॉपर पैक्ड है, टूटेगा अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से पाइप से निकल कर आए। पहली बात। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इन पे एक डेट मेंशन होती है, ठीक है, कि इनका एक एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट के बाद इसे रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो गैस फिलिंग में कुछ गैस फिल वगैरह वाले होते हैं उन्हें गैस फिल कराना पड़ता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट में जब कभी प्रॉब्लम जनरेट हो तो हो। काफ़ी जगह थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यूज़ तो हो नहीं रहा, पड़े रहने देते, बट वी शुड नॉट अवॉइड दिस। आप देखते हैं कभी मुसीबत आती है, अभी प्लेन वाला देखा सबने, प्लेन का इंसिडेंस हुआ, अब उसमें जो तैयारी पहले से जिन्होंने कर रखी होगी, वैसे इमरजेंसी गेट है, तुम कभी बैठे हो, तुमने आज तक बस में भी ठीक से इमरजेंसी गेट नहीं देखा होगा, इमरजेंसी विंडो भी ठीक से नहीं देखी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा कैसे खुलता है, क्या होता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आप सोचो जो बंदा बचा है 11A वाला, वो वहीं तो बैठा था इमरजेंसी एग्जिट पे। आप एक बार इमेजिन करके देखो, उसे यही नहीं पता था गेट खोलते कैसे, तो क्या होता। नॉर्मली बस के गेट की तरह तो नहीं खुलेगा ना, हैंडल घुमाया निकल गया बाहर, ठीक है। तो उसने जब वो समझा रहे होंगे तो उसने जरूर सही से सुना होगा, प्रिकॉशंस उन्होंने इमरजेंसी गेट लगा रखा है। हो सकता है कि कम अगर आग लगी होती तो जहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे होते हैं वो भी काम में आते, लेकिन पता होगा तभी तो यूज में आएंगे। तो ये सारी नॉलेज होनी जरूरी है, मुसीबत कब आ जाए पता नहीं। किसकी फोटो, नॉर्मली दिखेगा, अलग कुछ नहीं दिखेगा। स्लो है इंटरनेट आज, शायद बारिश वारिश की वजह से। अपना कनेक्ट कर लूँ क्या, मेरा तो ऑन ही है। देखो वैसे तो डायग्राम देख लो, ये रहा, सारे ही डायग्राम ठीक हैं। देखो कोई भी डायग्राम देख लो, सब में सेम बात बता रखी है। एक बॉटल दिख रहा है जिसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। वंस यू पुल द लीवर तो ये बॉटल टूट जाएगी और ये जाके नीचे क्या है, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा में जाके गिरेगा और यहाँ पे रिएक्शन होने लगेगी। तो इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो बाहर निकल कर आएगी दूसरी जगह से, जहाँ से लीवर तोड़ा है वहाँ से नहीं, दूसरी जगह से निकल कर आएगी।
तो इस तरीके से होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये अच्छा डायग्राम दिखेगा तो बाहर से ऐसा, लेकिन अंदर से ऐसा काम करता है। एक बॉटल के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? कुछ और देखना है? थर्ड कह रहे हैं इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड। वेरी ऑब्वियस, अगर ये बेसिक इन नेचर है तो इसे एंटासिड बनाने में भी यूज किया जाता है। एंटासिड मतलब जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक को, एसिड की एसिडिक नेचर को खत्म करते हैं। ठीक है, ये ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में आएगी एग्जाम में कि बेकिंग सोडा का क्यों यूज होता है, तो आप बताओगे कि इट प्रोड्यूसेस द गैस। आप ये रिएक्शन लिखोगे, आप बताओगे हीट हो रही है तो ये जो गैस बन रही है it tries to move upward, it takes the cake with it takes the substance with itself making it fluffy. नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। मैं ना वॉशिंग सोडा से पहले ना आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सुनो सर, जब मैं बात करता हूँ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का कलर याद है किसी को? वेरी गुड बच्चों, पहले चैप्टर की चीजें भी याद नहीं है तुम लोगों को। ब्लू असल में वो होता है CuSO4.5H2 which is blue in color. Once you heat it up, it forms CuSO4 और ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है? वाइट। अब सर मतलब क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आई बात। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आप बोलते हो CuSO4, ये होता है सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। जब आप कहते हो CuSO4.5H2, ये क्या होता है? ये होता है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की बात करते हैं, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल देखे थे लास्ट टाइम जब हमने लैब वाली क्लास करी थी, तो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल से शुगर है, शुगर के छोटे छोटे दाने होते हैं, शुगर के छोटे छोटे एक एक पोर्शन, उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप कहोगे सर अगर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो आप मुझे छुएंगे तो हमें गीला गीला महसूस होगा। नहीं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये उसे वेट नहीं कर रहे, ये मदद कर रहे हैं उसकी क्या करने में? एक क्रिस्टल की शेप मेंटेन करने में, क्रिस्टल की शेप मेंटेन करने में। इसको डिनोट करते हैं .5H2, मतलब डॉट से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द डॉट सिग्निफाइज? डॉट क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecule, is the fixed number of water molecule जो किसी भी कंपाउंड को, एक क्रिस्टल को, किसी भी क्रिस्टल को एक क्रिस्टल जैसी शेप मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो उसकी क्रिस्टल जैसी शेप रहेगी, अगर ये नहीं है तो उसकी क्रिस्टल जैसी शेप नहीं रहेगी। जैसे कॉपर सल्फेट है, अभी ये ब्लू कलर का है, इसकी क्रिस्टल जैसी शेप होगी। वंस यू स्टार्ट हीटिंग इट अप, इट फॉर्म कॉपर सल्फेट, तो ये पाउडर बन जाएगा, क्रिस्टल नहीं रहेंगे। जैसे शुगर है, शुगर का क्रिस्टल होता है, लेकिन उसको अगर हम बिल्कुल पीस दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, एक क्रिस्टल और एक सॉल्ट। क्रिस्टल के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो उसे गीला नहीं करते, उसे वेट नहीं करते, बस उसे क्रिस्टल की शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं। उन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा आने वाले टॉपिक में, आने वाली जो क्लास होगी उसका टॉपिक रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट राइट नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डॉट का मतलब क्या है? ये डॉट का मतलब है इसके बाद जो भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ ये बताएगा कि ये सॉल्ट नहीं है, क्या है? क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है, यानी दाने दाने जैसा होगा। अब आप सर्फ यूज करते हो घर में, जो डिटर्जेंट यूज करते हो, वो पाउडर होता है, क्रिस्टल होता है? आज घर जाकर ना हाथ में पकड़ के देखना, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, घर जाओगे हाथ में पकड़ोगे आपको पता लगेगा। इवन वो क्रिस्टल इतने शार्प होते हैं, जब उनका रेगुलर यूज करा जाता है तो हाथ में कट्स वगैरह भी पड़ते हैं। जब आपकी मदर कपड़े वगैरह धोती होंगे, एक बार उनके हाथ देखना, काफ़ी सारे कट्स वगैरह नजर आएंगे।
तो इसलिए अलग अलग डिटर्जेंट की ऐड आती है। जैसे कभी आपने देखो कुछ डिटर्जेंट के अंदर लेमन होता है, नींबू जैसी सफाई, बर्तन धो रहे होते हैं उससे, ठीक है, तो वो भी उनकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि बेसिकली एसिडिक इन नेचर और स्किन को क्या करेगा, हार्म करेगा। पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक यहीं समझा देता हूँ। अगला टॉपिक है कि आप क्या करोगे, आप सोडियम कार्बोनेट लोगे और सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालोगे, यानी क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट तो ये रहा, हाइड्रेट मतलब वाटर, डेका मतलब 10, डेका मतलब 10, दो 5 थे अभी पिछले वाले में कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट। 2 होते हैं तो डाईहाइड्रेट, 3 होते हैं तो ट्राईहाइड्रेट, 4 होते हैं तो फिर कुछ वर्ड होता होगा टेट्राहाइड्रेट, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी इसमें 10 हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट याद रखना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। व्हाट इज इट्स केमिकल नेम, केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके पास होते हैं। बट प्रॉब्लम यू कैन सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, सोडियम क्लोराइड का यूज नहीं किया। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है, NaHCO3 को आप क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, बोलो क्या बनाता है, Na2CO3, साथ में क्या बनाता है, H2O, साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो हमने पढ़ी थी पकौड़े के अंदर, भटूरों के अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं और उसे हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। जो ये सोडियम कार्बोनेट बना इसी को यहाँ पर लेकर आए और इसका क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, तो इसने क्या बना लिया, वॉशिंग सोडा बना लिया। अब अगेन प्रॉब्लम वही है, ये आप क्या कर रहे हो, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। स्टेप 1, NaCl प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन भी आपने पहले पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ी थी। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया जाता है, यहाँ से बेकिंग सोडा लिया जाता है, बेकिंग सोडा को हीट कर क्या बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या डाला जाता है, H2O, ताकि क्या हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जब आपसे पूछा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा तो तीनों स्टेप लिखनी है। पानी ऐड करना पड़ता है, अगर उसके क्रिस्टल्स होते हैं तो थोड़े समय बाद हो जाता है, पानी ऐड करके ड्राई अप करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको इसके लिए बता सकता हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे। आप चीनी लीजिए, चीनी के अंदर पानी डालिए, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर लेना, जैसे 1 ग्लास है तो इतना आप शुगर ले लो, उसमें पानी डालो, पूरा ग्लास कर दो और उसे अच्छे से स्टिर कर दो, अच्छे से स्टिर कर दो, चीनी पूरी मिल जाए, घुल जाए। तो क्या शुगर के क्रिस्टल दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। अब उसको एक कटोरी के अंदर डालो, एक बाउल के अंदर डालो और उसको धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद आप देखोगे आपको सब जगह ना एक फिक्स पैटर्न बनाए नजर आएंगे। हो सकता है वो पैटर्न आपको ऐसे बने हुए नजर आए, ऐसे पैटर्न बने हुए नजर आए। तो ये क्या है, बेसिकली क्रिस्टल जैसी शेप ले, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी वो क्रिस्टल हो जाता है, ये क्रिस्टल जैसी शेप ले लेता है। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वाटर डालो और वाटर डालने के बाद अच्छे से स्टिर करके ड्राई अप करने के लिए रख दो। दैट इज बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन। एक बार पढ़ लें इसे फटाफट, याद करने वाला है। जब तक इसको 2-2, 3-3 बार लिखकर याद नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा, एग्जाम में तो पक्का आता है। तो पहला स्टेप वही प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सेकेंड स्टेप हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा,
और थर्ड स्टेप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। पढ़ लें। वॉशिंग सोडा इज सिंथेसाइज्ड थ्रू सॉल्वेट प्रोसेस। अभी सॉल्वेट प्रोसेस हमने देखा था, पिछले वाले प्रोसेस को सॉल्वेट प्रोसेस ही कहते हैं। वो सारी प्रॉपर वहाँ से गाथा जो वहाँ थी सेम टू सेम यहाँ लिख दी गई है। यही सब लिखा था ना। सॉल्वेट प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। फिर बता रखा था कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इज प्रोड्यूस थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट। देखो सेम टू सेम पैराग्राफ लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट हो रखा है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। कहाँ तक? अमोनियम क्लोराइड तक सब कुछ सेम लिखा है। कहाँ तक? अमोनियम क्लोराइड तक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेन बात है, यहाँ से इसके लिए याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है एट फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं। ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑब्टेन कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में एंड देन कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते कैसे? बाय हीटिंग इट अप। फाइनली वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय, फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? वॉशिंग सोडा बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करते क्या बन जाता है? सोडियम बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम नहीं लिखा मैंने, लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो अपने नोट्स में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिखा है? फिर मैं कहूँ ऐसे कैसे रह जाएगा? ये रहा ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा ये पढ़ना भूल ही गए हम शायद से। वॉशिंग सोडा इज अ वाइटिश ऑर्डरलेस पाउडर। आजकल तो ऑर्डर आने लगी है, अच्छी स्मेल डाल देते हैं इसके अंदर कंफर्ट वगैरह में। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3.NH2 एंड इज बेटर नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। आप वॉशिंग सोडा को थोड़ी देर के लिए ना एक बाउल में डालकर ना खुला छोड़ दो, वो ना थोड़ा सा आपको गीला गीला महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत सोल्यूबल होता है एंड फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन वाटर सोल्यूशन। अच्छे से मिक्स होगा तभी तो कपड़े धो पाएगा, तो बहुत हाईली सोल्यूबल होता है। यूजेस क्या कह रहा है? वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बर्न्ट ऑन ग्रीस फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स। कभी कभी जो बर्तन है, यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर बर्न्ट मार्क लग जाते हैं, जिससे कभी हम कुछ गैस पे रखकर भूल गए तो उससे वॉशिंग सोडा से रब करने से वो जो बर्न और मार्क है वो हट जाते हैं। इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत बार यूज होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है ना? देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर। हम जानते हैं खारा पानी और मीठा पानी। हम उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। बेसिकली खारा पानी इज हार्ड वाटर दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो जो सोप होता है, जो डिटर्जेंट होता है, बेसिकली वॉशिंग सोडा, ये जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को कम करता है। पानी को कैसे बनाता है? सॉफ्ट बनाता है ताकि कपड़े उसमें अच्छे से धुल सके। इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सोडियम प्रोडक्ट। अलग अलग सोडियम प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। जैसे कि एक सोडियम प्रोडक्ट है बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का क्या होता है? यूज होता है। हो गया? आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। अगला टॉपिक आप देखो, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, ये डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट्स इट, खत्म। इसके यूजेस एक बार इससे आराम से गो थ्रू कर लो। कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में इट वुडंट टेक अस more than 25 to 30 minutes to complete the chapter. So what we are supposed to do in the remaining time, you guys will be coming learning after all the 4 preparations for sodium, for all the sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda and washing soda। चारों का याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर आके आपसे चारों का लिखवा कर देखो, ठीक है? पिन पेज निकालेंगे और चारों का प्रिपरेशन अलॉन्ग विद देयर यूजेस, ये आपको याद करके आना है और आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आप बात कर लेते हैं पीटीएम की।
कुछ बच्चे ऐसे थे जो पेटीएम में बहुत मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए। और कल भी नहीं आए पाए बेचारे। आराम से देखो इसे, आज वैसे करेंगे तो इतना ही।